شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے جہاں بھی ہوں گے، اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ، میرا نام ہے ہنا، اور بچوں ہم پڑھیں گے جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب ششم، جس کا عنوان ہے انسانیت کا ادراک اور معاشرتی شعور۔ باب ششم کا ہم پڑھ رہے ہیں سبق 6.3۔ آج اس کا لیکچر تیسرا پڑھایا جائے گا، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے خدمت خلق۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہیں، ایک پڑھنا کی فہرست سے لیا گیا ہے اور دوسرا بات چیت کی فہرست سے۔ جو حاصل تعلم پڑھنا کی فہرست سے لیا گیا ہے، طویل عبارت کو درست لفظ کے ساتھ پڑھنا۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم اس پر کام کر رہے تھے، یعنی کل بھی ہم نے اسی کو سیکھا ہے، آج اس کو جاری رکھیں گے۔ اور دوسرا جو ہمارا حاصل تعلم بات چیت کی فہرست سے ہے، وہ ہے ڈرامہ کہانی دیکھ کر اس کے کرداروں اور اخلاقی نتائج سے متعلق اظہار رائے کرنا۔ آج کے سبق میں آپ سیکھیں گے، لیکن اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے، اور سرگرمی میں کچھ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے جو بہت ہی دلچسپ ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ آپ نے اپنے پسندیدہ ڈرامے کا نام بتانا ہے۔ آپ کون سا ڈرامہ ایسا ہے جو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں؟ کوئی ایسی کہانی جو آپ کو پسند ہو، اس کا نام اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتانی ہے۔ کہانی اب آپ نے بتانی ہے تحریری کہانی، مطلب ایسی کہانی جو آپ نے کہیں پڑھی ہو، کہیں سنی ہو، تو آپ نے اس کا نام اور پسندیدگی کی وجہ بتانی ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، کسی کہانی یا ٹی وی ڈرامے کا کوئی ایسا کردار جو آپ کو پسند ہو، اس کا نام بھی بتانا ہے۔ بچوں کے ٹی وی ڈراموں کے بھی نام بتا سکتے ہیں، کچھ ایسے ڈرامے بچوں کے بھی چل رہے ہیں جو بچوں کی تربیت سے بھی متعلق ہیں۔ کہانیوں میں بھی ایسے کردار ہیں جو بہت ہی پر اسرار قسم کے کام کرتے ہیں، جو بچوں کو بہت پسند آتے ہیں، جاسوسی قسم کے، یا پھر ہیرو ٹائپ قسم کے کام جو ہے بچوں کی کہانیوں میں کچھ ایسے کردار کر رہے ہوتے ہیں جنہیں بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے ان بڑے ہی دلچسپ سے تینوں سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ ویڈیو کو روکے، اپنے معلم یا معلمہ سے اجازت لے اور ان سوالات کے جواب دے۔ جی تو بچوں، سوالات ہمارے ختم ہوئی، تمہیدی سرگرمی ہم کر چکے۔ اب کیا کریں گے؟ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے، باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ کل ہم نے شروع کیا تھا سبق 6.3 کا پہلا نفس، آج اسی کو مکمل بھی کریں گے۔ آخری نفس کی بلند خوانی آج آپ کو کروائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہے، بات چیت کی فہرست سے لیا گیا، اس کے ساتھ اس حاصل تعلم میں طلبہ کو ڈرامہ کہانی دیکھنے کے بعد اس کی کرداروں اور اخلاقی نتائج سے متعلق خیالات کے اظہار کی مشق کروائی جائے گی، یعنی آپ اس کی مشق کریں گے، یعنی یہ کام آپ خود کریں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اور رائے کا اظہار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے پر اعتماد طریقے سے آپ اپنی بات کو بیان کریں، لیکن وہ بات بیان کریں جو حقائق پر مشتمل ہو۔ سبق کا متن شروع کریں گے۔ آخری نفس آج ہم نے مکمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ آج پڑھیں گے۔ ترجمے سے شروع کریں گے۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پہلا حاصل تعلم ہے ہمارا درست تلفظ کے ساتھ عبارت کو پڑھنا، اسی کے لیے ہم اس سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے ضائع نہیں ہونے دے گا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ملانے والے ہیں، بیواؤں اور لاوارث لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محتاجوں کو کما کر دینے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور لوگوں پر آنے والی مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث کا ذکر آیا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہاں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان معاشرے کے نادار لوگوں کا سہارا بنتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت، ذات بابرکات، اب آپ نے بابرکت نہیں، آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے، اور یہاں پر زیر ہے، ذات بابرکات خدمت خلق کا عملی نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ ملک حبشہ کے بادشاہ، آپ اس کو ملک حبشہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے چند مہمان مدینہ منورہ آئے۔
सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हम में से हर एक की ये ख्वाहिश थी कि वो मेहमान की खिदमत और मेहमान नवाजी करे, लेकिन नबी अकरम खातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इनकी मेहमान नवाजी और मदारत की और फरमाया, क्या फरमाया? इन लोगों ने मेरे साथियों महाजरीन हबशा, अब यहाँ पर जेर के साथ आएगा महाजरीन हबशा की खिदमत की है, इसलिए मैं खुद इनकी खिदमत करूंगा। अच्छा, मैंने कल भी बताया था कि मौलम खुद इस सबक को पढ़े, कहीं पर जेर जबर नहीं लगा हुआ है तो क्या करे, खुद उसका तलफ़ुज़ अदा करके बच्चों को बताए, ताकि बच्चों को पढ़ने में, यानी जब वो खुद से पढ़े तो आसानी रहे। जैसे महाजरीन हबशा है, फिर उसके साथ मैंने उससे पहले भी एक लफ्ज़ बोला था जहाँ पर जेर का इस्तेमाल हुआ और नहीं हुआ था, जैसे ये ज़ाते बाबरकात, तो ज़ाते बाबरकात भी मौलम खुद पढ़कर बताएं और बच्चों को समझाएं कि इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ उन्होंने इस तरीके से अदा करना है। सबक का पहला आखिरी निफ्स मुकम्मल किया जाएगा। आखिरी निफ्स हमारा मुकम्मल हो रहा है। खिदमत खल्क के ज़रिए सिर्फ लोगों में इज़्ज़त और एहतराम ही नहीं पाया जाता, अल्लाह ताला के यहाँ भी आला मकाम के हसूल का आसान रास्ता है। बस खिदमत खल्क ऐसी सिफ्त है जिसकी बदौलत कोई भी इंसान दीन दुनिया और आखिरत में कामयाब और सुरखरू हो सकता है। बुलंद ख्वानी के बाद मौलम तलबा से ज़रूर पूछें कि किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ में उन्हें मुश्किल पेश तो नहीं आ रही। अगर आ रही है बच्चों तो आप बिला हिचकिचाए मौलम से ज़रूर रहनुमाई लें, पूछें। मायने और मफ़हूम समझने में मुश्किल आ रही है तो ज़रूर पूछें, वरना कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। जैसे ही बुलंद ख्वानी मुकम्मल हो, आप अपना काम पूछ चुके हों, तो उसके बाद मौलम एक काम तो फीस करें। ये काम जो है जुमात में ही हल करने वाला है और किताब पर हल करने वाला है। 3 सवालात हमारे कल के रह चुके हैं, पहले 3 का हम जवाब किताब पर हल कर चुके हैं। चौथा है, दीन इस्लाम ने खिदमत खल्क को करार दिया है। आप खातिमुल नबीयीन के पास मेहमान तशरीफ़ लाए थे और इस्लाम ने इंसानों के साथ साथ ताकीद की है किन के साथ अच्छे सलूक अदा करने की। ये जवाबात आपने दुरुस्त इन 4 जवाबात में से मुंतखब करने हैं और उनके जवाब किताब पर ही लगाने हैं। जब बच्चों आप ये काम मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद हम करेंगे सरगर्मियाँ, बहुत ही दिलचस्प और नए नए काम जो हर रोज़ हम करते हैं, ताकि जो हमारे हासिल ताल्लुम है वो आप बहुत अच्छे बेहतर तौर पर सीख सके। मैंने कल भी बताया था, मैं भी आपको सिखा दूंगी, मौलम भी आपको सिखा देंगे, लेकिन बेहतर तौर पर आप तब सीखेंगे जब आप उस काम को खुद करेंगे। हमारी पहली सरगर्मी में आप करेंगे बच्चों, मौलम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। एक निफ्स यानी सबक का पहला निफ्स जो है वो एक ग्रोह को और दूसरे ग्रोह को आखिरी निफ्स मुंतखब करके जो है वो बुलंद ख्वानी के लिए देंगे और दौरान सरगर्मी तलबा के दुरुस्त तलफ़ुज़ की जांच करेंगे। इस सरगर्मी में दोनों ग्रोह सबक के आधे आधे हिस्से की बुलंद ख्वानी करेंगे, यानी उनको पढ़ेंगे और तलफ़ुज़ की जो जांच है वो मौलम खुद करेंगे। यहाँ पर सबक वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। जी बच्चों, पहली सरगर्मी मुकम्मल हुई। अब दूसरी सरगर्मी जिसकी मश्क करने का मैंने आपको शुरू में बताया था, उसमें आप क्या करेंगे, ये एक मैंने लिंक दिया है यूट्यूब का, ठीक है। मौलम बरकी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जुमात को ये कहानी दिखाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सबक आमूज़ है और कहानी के ख़त्म होने पर तलबा से इस कहानी के अखलाकी नतीजे पर गुफ्तगू भी की जाएगी। अब बच्चों आपने इस कहानी को बहुत तवज्जो से देखना है, क्योंकि मौलम या मौलमा इस कहानी को एक ही बार दिखाएंगे, बार बार इसको दोहराया नहीं जाएगा। लिहाजा आपने एक ही दफ़ा में इस कहानी को बहुत तवज्जो से देखना है, बहुत तवज्जो से सुनना भी है, क्योंकि कहानी ख़त्म होने पर इसके अखलाकी नताइज के बारे में, यानी इससे आपने क्या अखलाकी सबक सीखा है, उसके बारे में गुफ्तगू की जाएगी। तो यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। मौलम या मौलमा जुमात में ही आपको ये कहानी दिखाएंगे। मुख्तसर सी कहानी है, बहुत तवज्जो से देखिएगा और सुनिएगा भी। वीडियो को रोकें, इस काम को सरअंजाम दें। जी तो प्यारे बच्चों, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी और आपने बहुत तवज्जो से देखी भी है, तभी इसके अखलाकी सबक के मुतालिक आपकी गुफ्तगू बहुत ही काबिल दाद है। आपने बहुत ही तवज्जो से सुना है और बहुत ही अच्छे अंदाज में राय का इजहार किया है। यही राय जो है आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि जो आप कहते हैं वो उस पर जब तक आप अमल नहीं करेंगे तो वो बातें आपकी सिर्फ खाली बातें ही हैं। लिहाजा जो आप बात जुमात में अपने हम जुमातों को सिखाते हैं, उन बातों पर आपका खुद अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। बढ़ेंगे हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। अब ये वो सवालात हैं बच्चों जो आज के मतन से लिए गए हैं। आपने घर जाकर सबक का मतन दोबारा पढ़ना है और इन दोनों सवालात के जवाब जो है कॉपी पर लिख कर लेकर आने हैं। इसके साथ साथ घर का एक और काम भी है।
आपने आज फिर वीडियो का काम है, आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, किसी अखबार रिसाले या किताब में से खिदमत खल्क के मौजू पर कोई सबक आमूज कहानी पढ़नी है और उसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उस कहानी में जो भी आपका पसंदीदा किरदार है उस पर बात करते हुए अपनी पसंदीदगी की वजह भी बतानी है। यानी एक तो आपने कहानी पढ़ेंगे, कहानी का एक मुख्तसर सा खुलासा आप बयान करेंगे जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने ये कहानी पढ़ी, उस कहानी में ये किरदार मेरा पसंदीदा था और क्यों पसंदीदा था। क्या आया वो बड़ों का बहुत एहतराम करता था, क्या वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, उनका ख्याल रखता था, या अनजान लोगों की मदद करता था। इस तरीके का कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद आया हो, उसका आपने वो कहानी में पढ़ना है और कहानी में पढ़ने के बाद उस किरदार के बारे में आपने अपनी पसंदीदगी की वजह भी रिकॉर्ड करके बतानी है। ये वो काम है जो आपको बहुत पसंद है और आप आए रोज़ करते ही रहते हैं, आपको ये काम तो फीस किया जाता है कि आप वीडियो भी रिकॉर्ड करें और अपने ख्यालात का इजहार जो है उस वीडियो में करें। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। कल मिलेंगे इस सबक के दूसरे हिस्से में, यानी सबक के चौथे लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा।